often lives in small moments. Sometimes, however, it leaps off airplanes at 30,000 feet, races with the wind, and teaches the world what fearlessness truly looks like. Today's session brings us face to face with a story that has defied gravity, literally and metamorphically. A story of grit, sky, silence, and soaring human will. A very warm afternoon to everyone present here at the 7th edition of OCLF 2025, organized by Rai Soni Foundation. I am Ashwini Rathi, extend my heartfelt welcome to our esteemed speaker, our moderator, and to each one of you joining us for this inspiring conversation. Let me introduce our today's speaker. We are honored to host Ms. Sheetal Mahajan, one of India's most extraordinary civilian skydivers, a woman who turned the sky into her playground. With over 784 skydives across altitudes of 13,500 feet, 18,000 feet with oxygen, and even a breathtaking jump from 30,500 feet AGL, her journey is nothing short of legendary. Sheetal is the only woman in the world to skydive over all 7 continents and the first to perform her maiden static line jump over the North Pole, followed by the first accelerated free fall of her life over the South Pole, both without prior practice or training. Now, reading this is already giving me goosebumps. A Padma Shri awardee, professional coach, judge, drone pilot, paragliding pilot, and a relentless adventure, she stands as one of India's strongest symbols of sheer determination and sky-high courage. Guys, please give her a big round of applause. We are really honored to have you here, ma'am. Joining her would be Dr. Ruchi Chaudhary in Skills and Image Management with a PhD in HRM, 12 years of teaching and industry experience. She has contributed immensely to institutions like RTMNU, CP and Virar, and Dr. Punjab Rao Deshmukh University. Dr. Ruchi has conducted countless workshops on topics like personal branding, power of words, social media etiquette, and audience engagement. A decorated academic with multiple awards, research publications, and leadership roles. She has judged fashion shows, debates, coordinated events, and contributed actively to social causes through Rotary and Inner Wheel. Today, she brings a rich experience to guide this powerful conversation. May I request Dr. Ruchi to please continue with the same energy, and we welcome both of you for this powerful conversation. Over to you, Ruchi ma'am. Thank you. First we'll play with the video. Thank you so much for really amazing, words of welcoming, really nice. And it's, so guys, welcome to the Orange City Literature Festival, and especially this hour of the day where we have with us none other than skydiver with holding so many awards, world records, and Padma Shri Sheetal Mahajan. So who is living her life on adventure? It's the privilege of Orange City Literature Festival and Nagpur, and definitely my privilege to moderate your session, ma'am. It's really the privilege. So let's welcome none other than Queen of Sky, Sheetal Mahajan. So ladies and gentlemen, boys and girls, can we give her the standing ovation? She is the perfect example of Bharatiya Nari, Sab pe Bhari. Thank you so much, audience. Ma'am, पहले एक आपका वीडियो के थोड़े से clippings देखें. Let's see. I mean, audience should know that who's sitting here and what are the achievements. Guys, let's have a look. Actually, this is my all 22 years hard work. This is my second national award, Padma Shri. This is top of the world, North Pole, जहाँ पे मैंने मेरी ज़िंदगी की पहली जंप करी थी बिना किसी ट्रेनिंग के इन -38 डिग्री सेल्सियस, एंड पहली बार पैराशूट पहन के पहली जंप नॉर्थ पोल पे करी हुई है इन -38 डिग्री सेल्सियस. तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल पे मैं खड़ी हूँ. और उसके बाद प्लान किया 7 कॉन्टिनेंट्स. तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स में पूरी धरती पे 7 कॉन्टिनेंट्स है. इस 7 कॉन्टिनेंट्स का पहला कॉन्टिनेंट था अंटार्कटिका.
तो अंटार्कटिका पे हम ये ट्विन ओटर नाम का एयरक्राफ्ट लेकर गए थे, जिसके अभी एयरक्राफ्ट में व्हील्स नहीं है, स्लेज लगे हुए हैं क्योंकि आइस पे लैंड होता है। तो ये मेरा दूसरा जंप था, बट पहला फ्री फॉल जंप मैंने अंटार्कटिका पे किया था। दिस इज़ जियोग्राफिकल साउथ पोल। ये जो एक्सिस दिख रहा है दैट इज़ एक्सिस ऑफ द अर्थ, 0 डिग्री साउथ। तो वहाँ पर दूसरी जंप की थी। देन मैं आई डिड माई टोटल 250 जंप्स का ट्रेनिंग। उसके बाद ये फॉर्मेशन स्काई डाइविंग कहते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट से हमने 250 लोगों ने जंप करी है। सॉरी 79 पीपल डिड द जंप फ्रॉम एयरक्राफ्ट, एंड 4 अलग अलग एयरक्राफ्ट से हमने जंप किया था। एंड वी हैव डन दिस फॉर्मेशन, दिस कॉल्ड फॉर्मेशन स्काई डाइविंग। देन ये विंगसूट फ्लाइंग है, ये यूरोप में किया था, अनदर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया। देन एशिया कॉन्टिनेंट में हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के लिए इंडिया में ये जंप हुई, और फर्स्ट टाइम ये कमर्शियल एक्टिविटी की थी इंडिया में। एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने जंप किया, आई डिड दिस इन तुगलकवा स्काई डाइविंग सेंटर, एंड वहाँ पर नीचे कंगारूज आए थे लैंडिंग के टाइम पे। सो दिस इज़ साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, और वहाँ पर वर्ल्ड रिनाउंस स्काईडाइवर्स के साथ जंप किया था। दिस इज़ 7th कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका, सॉरी ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका। तो वहाँ पर ये जंप किया था। उसके बाद टू इंस्पायर इंडियन वुमेन व्हाट वी कैन डू, मीन्स आई जस्ट वॉन्टेड डू समथिंग डिफरंट, तो मैं साड़ी पहन के स्काई डायविंग किया था। तो नऊवारी साडी सगळ्यांना माहिती आहे, नऊवारी साडी घालून मी स्काय डायविंग करते आता रेग्युलरली। तर माझे इन्स्ट्रक्टर थोडे स्केअर्ड होते की कशी करणार, तर साडी बांधून रॅपिंग करून केली होती। देन 2018 आय वॉज रिप्रेझेंटिंग इंडिया इन US नॅशनल्स चॅम्पियनशिप, आणि तेव्हा मोदीजींचा बर्थडे होता। सो वी विश्ड प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदीजी फ्रॉम 10,000 feet विश यू हैप्पी बर्थडे, बट इट टुक 7 जम्प्स टू होल्ड दैट ग्रीटिंग कार्ड। पहली बार उड़ गया, दूसरी बार फट गया, बहुत कुछ, मतलब एक वीडियो आया जिसमें किया। दिस इज़ C-130 एयरक्राफ्ट, जिसमें 4 इंजन्स थे, एंड ये पिरामिड्स के ऊपर जंप किया है कायरो में, इजिप्ट में। एंड पिरामिड्स के सामने साड़ी पहन के 19 फरवरी 2019 सेलिब्रेट किया था। एंड टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए इंडिया में पहली बार मेरी जंप पैरा मोटर से हुई थी। पैरा मोटर से कभी किसी महिला ने जंप नहीं की थी, तो ये भी जंप मैंने साड़ी पहन के की थी। और ये पुणे में हडपसर ग्लाइडिंग सेंटर में 26 जनवरी को करी जंप 2022 में। नाउ एग्जिटिंग फ्रॉम 5,000 feet, 3, 2, 1 एग्जिट। यू कैन सी द अर्थ कर्वेचर हियर। दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है कहते हैं ना, वो तो यहाँ से दिखता है। तो ये 26 जनवरी को लैंड किया यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। तो एक ग्राउंड पे स्पॉट हम करते हैं कि यहाँ पर लैंड करना है, तो यहाँ वो प्लान करके तो सेम डे डिसाइड करा कि ये जंप नाइट में भी कर सकते। तो इंडिया में नहीं, एशिया में किसी ने नाइट जंप पैरामोटर से नहीं किया था। सो इसे ये मशीन अलग है, ये हमर शूट काइंड ऑफ पैरामोटर है। तो ये फिर से ब्लैक कलर का ये जो ग्राउंड दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट, दैट इज़ अगेन हडपसर ग्लाइडिंग सेंटर पुणे। यहाँ पर हम रात को 8:30 बजे पैरामोटर में ऊपर गए, एंड मैं लाइट्स लगाए थे, LED लाइट्स, एंड आई डिड दिस जंप। एंड फर्स्ट टाइम इन एशिया समबडी डिड द पैरामोटर स्काई डाइविंग फ्रॉम पैरामोटर, एंड 3,000 फीट पे ये पैराशूट खोला, और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशनल टॉक भी दिया था ऊपर से। एंड आई डिड द लैंडिंग एट द सेम स्पॉट, जिसमें डे टाइम में किया था वही सेम स्पॉट पे नाइट में किया। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन एशिया हैपेंड लाइक दिस। देन 2023 में आई प्लान्ड माउंट एवरेस्ट जंप। तो हिमालयन रीजन में मुझे स्काई डाइविंग करना था 2007 से। सो 16 साल के बाद मुझे यहाँ पे जंप करने की परमिशंस मिली, एंड सबसे बड़ी बात स्पॉन्सर्स मिले। रिलायंस फाउंडेशन सपोर्टेड दिस एक्सपीडिशन। एंड माउंट एवरेस्ट पे जंप करना या उस रीजन में जाके जंप करना इज़ नॉट ईजी। चल के जाना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस रीजन में। तो जैसे बेस कैम्प 1, बेस कैम्प 2, बेस कैम्प 3 ऐसे पड़ाव होते हैं, वैसे टाइप में हमारे इसमें भी वैसा ही होता है। तो पहले हमारा पहला पड़ाव था सैंगबोट से जो एरिया है वहाँ पर, जो नामचे बाजार से थोड़ा ऊपर आता है, 12,402 फीट पे। तो यहाँ पर पहले ट्रायल जंप्स हुए। उसकी पहली जंप होने के बाद ये सेकेंड जंप के लिए मैं जा रही हूँ।
तो ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ये मैं अभी 22,000 फीट से जंप कर रही हूँ विद फ्लैग। मेरे पैर पे यू कैन सी एक बैग है छोटा सा, ये एक छोटा बैग जो दिख रहा है दैट इज़ अ इंडियन फ्लैग। और हिमालयाज़ में भारत का तिरंगा लेके मैं फ्लाई किया है और ये ऐसी जंप करने वाली मैं दुनिया की पहली महिला बनी हूँ। Actually giving goosebumps, and oh my God, I mean really, what kind of celebrity we have today. सो ये Absolutely भारत का fantastic. तिरंगा लेके हिमालय में फ्लाई किया। उसके बाद सेकंड पड़ाव था अमाडाबलम। तो नेक्स्ट जंप अमाडाबलम में थी। अमाडाबलम वाज मोर हायर, 15,000 फीट पे लैंड करना था। तो बेस कैम्प 15,019 फीट है ये। तो यहाँ पर विंड सब कुछ काम था। पायलट ने कहा चलो निकलते हैं, सुबह 8 बजे डिसीजन लिया कि वी आर गोइंग। ये एग्जिट शॉट के लिए कैमरामैन हायर किया था, यू जस्ट सी द एग्जिट। तो ये शॉट मुझे चाहिए था जो हिमालयास दिख रहा है और मैं फ्लाई कर रही हूँ। I know. तो इसलिए कैमरामैन लेकर गए थे। इमेजिन नहीं कर सकते वो मैम ने किया है, सीरियसली। तो जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसे प्लान करना पड़ता है। सो वी प्लान्ड इट एंड Correct. सेकंड पड़ाव पार कर लिया, अमाडाबलम पे लैंडिंग कर ली। सो जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ऐसे कुछ ना कुछ एडवेंचर करते रहो जिंदगी में। देन नेक्स्ट पड़ाव था माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के सामने लैंड करना था। इस रीजन में जाके यहाँ पे विंड्स बहुत ट्रिकी होती है। मॉर्निंग में ही पायलट ने कहा कि विंड्स काम है, वेदर इज़ गुड, देर इज़ नो क्लाउड, लेट्स डू द जंप टुडे। जो जंप प्लान थी 2 दिन के बाद, वो सेम डे प्लान करी, विद इन 1.5 आवर वी टुक द डिसीजन और माउंट एवरेस्ट के सामने टेक ऑफ कर लिया। और अभी हम 22,700 फीट से हेलीकॉप्टर से जंप करने का प्लान किया। ये पूरा जो रीजन दिख रहा है, मैं तो यहाँ पे पॉज कर रही हूँ। ये इसे कहते हैं खुम्बू। ये यहाँ पर जो एरिया है इसे खुम्बू आइस फॉल कहते हैं एरिया, जो माउंट एवरेस्ट जाने का सबसे डेंजरस पार्ट है। सबसे ज़्यादा डेथ इसी पार्ट में होती है। ये माउंट एवरेस्ट है, ये लोड से है, न्यूट से है। ये एक सी शेप की वैली है और यहाँ से पूरी हवा जो आती है, जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है, मतलब फ्लाई कर रहा है, वहाँ पर सब हवा हिट होती है। तो इस रीजन में हेलीकॉप्टर हवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पायलट, इट्स पायलट स्किल कि वो वहाँ पर हमें लेकर गया। और यहाँ पे परमिशंस बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकर मतलब हेलीकॉप्टर को लेकर जाने की परमिशन मिलना, बिकॉज इस हाइट पे लेके नहीं जा सकते। माउंटेन के हाइट के नीचे हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है जनरली, बट इस हाइट पे नहीं जा सकते। ये सारे चीज़ें जुड़ने के लिए 16 साल लग गए। देन आई डिड माई जंप फ्रॉम 22,700 फीट। यू कैन सी देर इज़ नो सिंगल क्लाउड, ब्लू स्काई है। तो ये नसीब में लिखा हुआ था इस दिन ये जंप होगी। सेम डे अमाडाबलम एंड माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड आई ओपन द पैराशूट एट 20,000 फीट एंड देन लैंड किया 17,404 फीट पे। अभी सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ जो है, मैं अभी सेल्फी ले रही हूँ माउंट एवरेस्ट के साथ 22,000 फीट पे। My goodness. दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। Actually. थैंक यू। सो ये होगी लैंडिंग वहाँ पे माउंट एवरेस्ट के सामने। सो आई डिड इट फॉर इंडिया। Yeah, that's hats off. थैंक यू। सो दिस इज़ माई सिग्नेचर पोज, जिसमें पूरी नेपाल सेम पोज में डैबिंग कर रही थी। Wow. Actually goosebumps and actually wow. And I think these clippings added the value addition to the entire session. हम कितनी भी बात करें मैम से, लेकिन जो हमने देखा and directly from her mouth, like listening to those words are really, ma'am, you are the inspiration, aspiration and motivation, everything. I mean, everybody, those who are sitting in the hall, it's unbelievable. Thank you. Yes, So we moving can- on to the questions, let's hear something from her side. So ma'am, basically what got you attracted to skydiving, which is not something very common? So can you please share with the audience that what was that कीड़ा, you know, so what was that कीड़ा? So एक्चुअली बचपन से ही कुछ करना था। बहुत सारे फील्ड ट्राई किए थे। मुझे एम.ए. हुसैन भी बनना था। मैं आई वॉज इन पेंटिंग्स ऑल्सो। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते, उसमें स्कूल के सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके फाइंड आउट कर लिया था कि जैसे टेबल टेनिस के लिए गई थी, स्विमिंग के लिए गई थी, बट वो
फील नहीं हो रहा था की येस आय एम बॉर्न फॉर दिस. हाँ, spark नहीं आ रहा था. नाही, स्व कहते मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना, माझा स्व नव्हता सापडत. सो दिस आय एम बॉर्न फॉर दिस वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी. जब स्काई डाइविंग करते हुए एक एक्चुअली माई हाउस इज नियर नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, कोथरूड में रहती हूँ मैं. तो वहाँ पर एक शो हो रहा था जिसके लिए मेरी क्लासमेट थी जो एनडीए में रहती थी. ओके ओके. तो उसने कहा हमारे यहाँ एक शो हो रहा है, एरो शो, तू आ जा. तो हमने क्या होता है, 11th में थी, मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी. बट रिपब्लिक डे को हम उस टाइम पे टीवी पे मॉर्निंग में देखते थे, राजपथ पे वो शो होता था. तो मैंने चलो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए गए. बट वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा ही नहीं था, उसमें से लोगों ने जंप किया, अब पैराशूट खोल के लैंडिंग किया. तब वो कीड़ा आया कि भाई यही करना है. Okay. ये भी करना है, बट ये भी किया जा सकता है. यस. बट जब आपके दिमाग में आ जाते कि हमें ये करना है और उस चीज को करने के लिए आपको रोका जाता है बिकॉज यू आर अ गर्ल. यस. तो वो चीज़ ज़्यादा हॉन्ट कर गई कि नहीं भाई मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं कर सकती. तो ऐसा बोला गया कि ये लड़कियों का फील्ड नहीं है. मैंने बोला भाई ये लड़कियों का फील्ड नहीं तो फिर मैं करके दिखा सकती हूँ कि लड़कियों का फील्ड भी हो सकता है. अच्छा. तब पता पड़ा कि इस फील्ड में, इस स्पोर्ट्स में मतलब तब तो गूगल बाबा नहीं थे. तब इंटरनेट इतना एडवांस था ही नहीं. फिर बहुत सारे लोगों को मिलके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की. एंड पता पड़ा कि भारत में सिर्फ आज तक 2 ही महिलाएं हुई है जिन्होंने स्काई डाइविंग फील्ड में कुछ करा है. जो भी वो भी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ थी, उनको चांस मिलता था. हमारे जैसे सिविलियंस के लिए चांस ही नहीं था. कॉमन वुमेन, अगर करना है तो इंडिया के बाहर जाओ. करेक्ट. तो मैं जब 12th में थी और घर वालों को क्या बोलूँ कि पढ़ाई करने नहीं जाना है, जंप मारने जाना है, तो छोड़ने पॉसिबल नहीं था. फिर घर वालों को ये कन्विंस किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है. उनको जब पता पड़ा कि एरोप्लेन से मुझे जंप करनी, बोलते हैं हमारे घर में कोई खानदान है, मैं एरोप्लेन में बैठा नहीं, कूदना है. तो क्वेश्चन ही नहीं था उनसे परमिशन मिलने का. फिर चीज़ें ऐसी होती गई कि इस फील्ड के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली. और फिर मेरे जो फ्रेंड थी उसके भैया से मैं मिली जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे स्काई डाइविंग करी थी. इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रहे वो, कमल सिंह. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. हाँ, तो उनको मिलने के बाद मैंने बोला सर आपने जैसे उड़ी मारी ना वैसे मेरे को भी उड़ी मारनी है. अच्छा. तो आज मैं आई कैन अंडरस्टैंड टुडे आफ्टर मेरा वीडियो देख के भी बहुत सारे बच्चे मुझे अप्रोच करते कि आपके जैसे हमें भी करना है. तो विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन मैं भी उनके पास गई थी. तो उन्होंने मुझे 1.5 साल तक कुछ नहीं बताया था. 1.5 साल तक मैं उनका फॉलोअप किया. देन आई फाउंड आउट कि नॉर्थ पोल भी जा सकते हैं, साउथ पोल, ये तो बेसिक है. अच्छा, तो आपने स्मॉल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उस पर रिसर्च किया और पता पड़ा कि ये तो प्रोफेशनल स्पोर्ट है. इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है. मैंने फिर शुरुआत कहाँ से करे, तो मुझे शुरुआत तो नॉर्थ पोल से करनी थी. अच्छा. तो फिर मैंने मेरी जिंदगी की पहली जंप प्लान करी नॉर्थ पोल पे, इंस्पायर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, माय फ्रेंड्स ब्रदर. देन वहाँ से कहानी शुरू हुई. ओके. तो दिस मतलब एक इवेंट में जाके आपने जस्ट पैराग्लाइडिंग देखा, उसके बाद स्काई डाइविंग. पैराग्लाइडिंग इज डिफरेंट. यस, स्काई डाइविंग, एंड दैट गिव्स यू दैट किक. रियली रियली ऑसम मैम. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करते हैं कि करेज टेक विंग्स, सो इट बेसिकली लुक्स लाइक शीतल महाजन. I mean, seriously, so amazing. Yes. So, ma'am, moving on to the, the next thing, I heard your interview on YouTube. So, I heard about, there was a story of your father's dedication towards your aspiration. So, can you share with the audience what was that small story? Actually, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे नॉर्थ पोल जाना है. Right. बट घर में सीन ऐसा हो गया था कि हमारे खानदान में कोई एयरक्राफ्ट में बैठा नहीं है. मुझे एयर होस्टेस भी बनना था उसके पहले. Okay. तो पापा ने कहा कि एयर होस्टेस बन ले, कूदना मतलब बहुत डिफिकल्ट है. तो उससे भी ज़्यादा ये था कि माय मदर, मतलब अपने सबके घर में अपने मदर्स जो है ना वो हाउस वाइफ हमने देखी हुई है. माय मदर वाज नॉट वर्किंग. तो उसके दिमाग में आया कि बेटा तुझे भी शादी करके यही काम करना है, तुझे भी हाउस वाइफ ही बनना है, तो तू इतना क्यों करना चाहते हैं एक्स्ट्रा का हार्ड वर्क. मैंने कहा नहीं, मुझे आपके जैसा लाइफ जीना है, पर मुझे बैलेंस लाइफ जीना है जिसमें मैं स्काई डाइविंग भी करूँ या फिर किसी फील्ड में जाऊँ और जॉब भी करूँ और मेरी फैमिली भी संभालूँ. तो उनको वो जचा नहीं. शी वाज लाइक कि नहीं होगा, ना तुझसे होगा ना, ये पॉसिबल नहीं है. मम्मा को कन्विंस करना ही बहुत चैलेंजिंग था. हाँ. तो वो नहीं मानी. तो उसने फिर मामा को बुलाया, मौसी को बुलाया, नानी को बुलाया, सबको आया. फिर मेरा क्लास हुआ कि बेटा ये अपने घर में नहीं हो सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है. करेक्ट. तो अपना चुपचाप पढ़ाई करो और शादी करके निकल लो. अच्छा. तो फिर मेरे पापा को बोला कि भाई मतलब पापा ये ऐसा करना है.
तो बोलते ठीक है, उन्होंने भी सुना और उन्हें भी छोड़ दिया क्योंकि घर में ऑलरेडी इसके ऊपर बवाल हो चुका था। फिर पापा को मैंने बोला एक वही एयर शो 1 साल के बाद उनको दिखाने लेकर गई, पेरेंट्स को सब लेके। Okay. उन्होंने भी जब देखा तो वही सेम हेलीकॉप्टर आया, कुछ हाँ, वैसे ही लोगों ने अच्छा। जंप किया। ओके। तब उनको मेरी आई ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं करने नहीं कर दूंगी, दूंगी। अगर हाथ पैर टूट गए तो कौन शादी कौन करेगा। शादी करेगा, फिर correct. वो अनदर लेवल डिस्कशन हो गया। तब मेरे फादर और सब लोग वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे फ्रेंड के भैया थे, उनको मिलने गए। हाँ हाँ। तो वो फ्रेंड के मतलब कमल सिंह ओबट सर, उनका नाम था, कोऑर्डिनेटर कमल सिंह ओबट। तो उन्होंने कहा कि शीतल मतलब वो थे कश्मीर से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप शीतल के माँ बाप हो, हमें मतलब आई एम वेरी प्राउड कि इसको इतना बड़ा विजन है, इसको कुछ करना है, तो मैं उसको जो भी सपोर्ट चेक कर दूंगा, आप फैमिली सपोर्ट उसको दे दो। तो मेरे पापा को इतना ये सरप्राइज हुआ कि ये बंदा हमारा कोई ना रिश्तेदार ना कुछ, Still ये ready to कहीं provide कश्मीर this से आया हुआ बंदा है, Correct. वो सपोर्ट करने के लिए तैयार, तो मैं एज अ फादर क्यों ना नहीं करूं। करूं। उस दिन बिल्कुल मेरे सही। फादर ने जो सपोर्ट के लिए हाँ बोल दिया, उसके बाद ही नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग। So that was a turning point to That was convince my the father, हाँ. and then he took a decision कि yes मेरी बेटी ने करना चाहिए। करेक्ट। और जब आपके फादर ने हाँ बोला होगा उसके बाद रिलेटिव्स का क्या रिएक्शंस हुआ होगा, मतलब डेफिनेटली तो मिक्स्ड ओपिनियंस आए होंगे। रिलेटिव्स ने उसके ऊपर बोला ना कि हाँ. बेटी पागल थी, अब बाप भी पागल हो गया। आई नो, बिकॉज वो तो रिलेटिव का पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो वो हो गया, फिर बाद में सबको बाद में कन्विंस sort- करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज Correct. वंस यू नो ऑल गर्ल्स कैन कोरिलेट। अपना बापू अपने साथ खड़ा होते तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। मैम थोड़ा सा उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि व्हेन योर फैमिली दे वर रेडी एंड एवरीथिंग, सो द मैनेजिंग द स्पॉन्सरशिप पार्ट एंड एवरीथिंग, हाउ यू मैनेज द एंटायर थिंग टू एंटर इनटू दिस सेक्ट। आई मीन दैट वाज आल्सो समथिंग वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी नाइस। सो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, अब तहे दिल से अगर किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपके हेल्प करने के लिए Correct. खड़ी हो जाती है। Yes. तो स्पॉन्सरशिप इज़ अ वन थिंग, चीज़ें हो जाती है, तहे दिल से उस चीज़ को करने की चाहत रखो बस। मैं तो मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे चीज़ें होती गई। Okay. मैंने पहले नॉर्थ पोल प्लान किया। हाँ, हाँ. नॉर्थ पोल होने के बाद जैसे पहला आपने देखा मैंने लैंड किया, Correct, हाँ. उसी दिन डिसीजन लिया कि मैं नॉर्थ पोल अगर कर सकती हूँ तो मैं तो अंटार्कटिका भी कर सकती हूँ। Correct. उधर से ही कमल सर को फोन लगाया था नॉर्थ पोल से कि सर नेक्स्ट पड़ाओ माउंट एवरेस्ट, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका होने के बाद फिर वहीं से डिसीजन लिया था कि अभी एवरेस्ट भी कर सकती हूँ मैं। बट उस टाइम मेरी शादी हो गई, फिर मतलब टाइम स्पैन 16 साल का गया, बट 2023 में एवरेस्ट भी हो गया, बिकॉज ये प्लान किया कि हमें करना क्या है। सी वी डोंट नो हम क्या कर सकते हैं आगे लाइफ में। करेक्ट। हमें एटलीस्ट गोल सेट करना है, उस तरफ चलते रहना है। सो एस्पिरेशन इज मैंडेटरी, वेरी ट्रू, करेक्ट। अभी तो एंड जो भी आप कर रहे हो जिसमें आप खुद हैप्पी होना चाहिए। मतलब मेरा एक ही फंडा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू टाइम लगाती है या फिर कुछ, इट्स नॉट। मेरा एक कहना है कि आप अगर आपके कंफर्ट जोन में कोई चीज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। कंफर्ट जोन इन द सेंस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके ही आपको सक्सेस मिलेगा, बट अगर कंफर्ट नहीं है आपको वो चीज़ अचीव करने में, तो वो आप वैसे भी अचीव नहीं कर पाओगे। Okay. मेंटल कितना स्ट्रेस लोगे, मीन्स आई हैव सीन एटलीस्ट स्पेशली इन एडवेंचर, अगर आप मेंटली स्ट्रेसफुल हो तो वो चीज़ें नहीं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। आई हैव सीन इट, मीन्स हमारे स्काई डाइविंग में तो एटलीस्ट फिजिकली इफ यू आर नॉट फिट चल जाएगा, Okay. पर मेंटली यू शुड बी मोर फिटर, बिकॉज दैट्स व्हाट इज करेज। करेज यहाँ पर अगर आप सोच लिया यू कैन डू एनीथिंग। करेक्ट, इट्स लाइक दैट। वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय शीतल दैट आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, आपको कंफर्ट में आना है। कंफर्ट इज एवरीथिंग, कंफर्ट इज करेज। कंफर्ट से बाहर आ गए तो नथिंग। एंड यू शुड बी हैप्पी व्हेन यू आर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू शुड बी हैप्पी फर्स्ट। यू शुड बी हैप्पी। तो स्ट्रेस में आके अरे यहाँ कोई रेस नहीं है। कोई जिंदगी में आज के दिन एट दिस मोमेंट अगर आप स्विच ऑफ हो जाओ इस धरती से, तो everyone including your parents will cry for you next 10 days 15 days 1 year. Correct. But who will lose that life? It's you. It's you. So आपको आपकी ज़िंदगी जीनी है ना, तो आपके तरीके से जियो। आपके तरीके से इन द सेंस आपको जो करना है उसको पूरा प्लान करके जियो। कि हड़बड़ी में करोगे तो उसमें आपको ही स्ट्रेस होगा, योर बॉडी विल बी मोर स्ट्रेसफुल एंड यू विल मोर सफ़र इन दैट। So it's better, I will say, whatever you want to do in your life, plan it and do it your way.
हाँ। घाई करके कोई घाई होने करके नहीं वाला है, बिल्कुल कहीं जाना सही। ही नहीं है, यहीं पे रहना है। इतने अमेजिंग लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं हमें मैम से। थोड़ा सा फनी पार्ट की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग। मैम जो थोड़ा सा आपने अनयूजुअल किया, सबसे पहले तो मैम को जो पूरे रिलेटिव से ये कुछ कमेंट सुनने को मिले कि भाई यही सब करती रहेगी तो तुझसे शादी कौन करेगा। और जब हम शादी की बात करते हैं तो शायद आप लोगों ने मैम के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं या देखे हैं या सुने हैं कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। बट मैम ने हवा में शादी की। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, हवा में शादी, हॉट एयर बलून में शादी। तो बेसिकली हम वो लोग बोलते हैं ना कि लड़की लड़के को भगा के ले गई या लड़का लड़की को भगा के ले गया, यहाँ पे सीन ये हो गया कि मैम तो अपने दूल्हे को उड़ा के ले गई। मतलब बेसिकली तो थोड़ा सा अरे और मैम से इसकी स्टोरी थोड़ी सी सुनते हैं कि हॉट एयर बलून में शादी। तो मैम थोड़ा सा कुछ ऑडियंस को बताएंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी, हमारी यंग जनरेशन बैठी है यहाँ पे। हाँ, प्लीज़ डोंट डू दिस। फर्स्ट घर वाले के परमिशन के साथ करना, क्योंकि हमें भी बहुत परेशानी, मतलब मुझे शादी करनी थी। मैंने पहले बोला था कि शादी करूँगी, आप बोलोगे उस बंदे से करूँगी, बट एक ही कंडीशन है, जब भी शादी फिक्स होगी उसको बोलना, जो भी लड़का या घर वाले हैं उनके, कि हवा शादी में होनी चाहिए। जैसे वो ना एक ऐड आती थी बचपन में, हमारे बारातियों का स्वागत किसी चीज़ से पान पराग से कीजिए वाली, ओके। तो वो वाला था कि ऐसा कुछ शादी में होना चाहिए कि तहलका टाइप में, तहलका मचाना तो जब चाहिए। एरो स्पोर्ट्स में मैं आई, नॉर्थ पोल साउथ पोल किया मैंने ना, भाई शादी तो हटके होनी हटके चाहिए। होगी। तो इंडिया के बाहर के कुछ लोगों की शादियां देखी थी जिसमें वो हवा में क्रिश्चियन टाइप की शादी हवा में कर रहे हैं, रिंग एंगेजमेंट, रिंग एक्सचेंज एंड एवरीथिंग। तो मैंने ये इंडियन शादी क्यों नहीं हो सकती। तो फिर वो प्लान तो किया था, बट दूल्हा कैसे मिलेगा, दूल्हा तो कैसे घर मिलेगा, वाले मतलब दूल्हा पहले ढूंढ रहे प्लानिंग हो थे। गई, शादी करनी कैसी है, दूल्हा बाद में ढूंढा जाएगा। तो कैसे दूल्हा कैसे ढूंढा गया मैम, थोड़ा सा। घर वालों ने ढूंढा। अच्छा, घर वालों ने But ढूंढा। वही था कि मैंने उन्होंने भी बोला वही था, किया, इधर रजिस्ट्रेशन उधर रजिस्ट्रेशन नहीं। मेरे इन लॉज ने, मतलब पहले 2-3 जो लड़के आए थे उन्होंने मना कर दिया था। हाँ। बट जो अभी मेरे हस्बैंड है वैभव राय ने, उनकी फैमिली ने कहा कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप देख लेना, वो शादी का खर्चा आपको करना है। अच्छा, खर्चा आप देख लो, तो हमें हवा में भी शादी चलेगी, ठीक है। तो मैं हस्बैंड वाज मोर इंटरेस्टेड कि हाँ तू अगर दैट टाइम आई वाज नेशनल अवार्डी, मुझे Okay, अर्जुना okay. पुरस्कार के पैरेलल जो था तेनजिंग नॉर्गे नेशनल लिटरेचर अवार्ड मिला हुआ था। यस। तो मतलब इन लॉज को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट उनको जब समझ में आया कि हॉट एयर बलून में शादी है, मतलब हो सकती possible है, हो सकता है, और ये हाँ। पहली नेशनल मतलब हवा में होने वाली शादी हो होगी। सकती है, तो उन्होंने भी कहा ठीक है कर लो करके। फिर मंगलाष्टका फेरे, कन्यादान, सब कुछ हवा में हुआ। मंगलाष्ट 700 के फीट फेरे, कन्यादान सब हवा में हुआ, जमीन से 700 फीट ऊंचाई पे। वेरी नाइस। सो एक हॉट एयर बलून में आप दोनों और दूसरे हॉट एयर बलून में मीडिया। मीडिया। मीन्स सी, आई थिंक एवरीबॉडी बाराती कैन actually। विजुअलाइज। एंड बाराती कहाँ पे? बाराती दूसरे बलन में। Oh my God! I mean, this is beyond imagination. ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है एंड करण जौहर ने उसको डायरेक्ट किया है। So this is डायरेक्टर में ही थी। हाँ, द डायरेक्टर, यस यस, बिल्कुल। हमारा डायरेक्ट डायरेक्टर थी, बट डायरेक्टर को ही सबसे ज्यादा गाली पड़ती है, क्योंकि प्रोड्यूसर से पैसे लेने होते हैं ना। तो घर वाले टेंशन में थे कि इतनी शादी करना तो चाहती है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला कर लो, एक ही बार जो शादी होगा, करेंगे। शादी तो एक बार होगी, जो होगा देख लेंगे। बट दोनों साइड से दैट support कोऑपरेशन मिला इज आल्सो family से। नीडेड। आपको दोनों फैमिलीज ने मैम को सपोर्ट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना इन लॉज हवा में शादी करने के लिए रेडी कि भैया शादी से पहले ही तुम ये क्या क्या। बट रियली नाइस मैम। तो मैम के लिए तो यहाँ पे ये कोट एकदम परफेक्टली फिट होता है, दैट सम पीपल वॉक्स ऑन रोड एंड सम क्रिएट देयर ओन स्काई, बट द पर्सनालिटी लाइक शीतल महाजन, शी डू लाइक शादी ही हवा में कर डाली। सो आई मीन रियली अमेजिंग थिंग मैम। और भी बहुत कुछ मैम के यू नो इतनी बड़ी स्टोरीज में से हैं, पर हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट पे फोकस करते हैं। मैम, सो आपने बीच में जब वीडियो दिखाया, यू वर टॉकिंग अबाउट द साड़ी वाला डाइव, तो थोड़ा सा ऑडियंस को उसमें भी इंटरेस्ट है कि भाई लोगों के तो जनरली गूज़बम्स हो जाते हैं, और आपने साड़ी, नवारी साड़ी में डाइव किया। सो यस, थोड़ा सा उस पर हमारी ऑडियंस को एक्चुअली नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, फिर उसके बाद शादी भी हो गई, फिर मुझे ट्विंस बच्चे हो गए, तो सबको लगा कि हो गया, एक बच्चा होने के बाद ही करियर खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। ट्विंस हुए थे, करेक्ट। तो मैंने बोला नहीं,
बच्चे होने के बाद मैं रुकने नहीं वाली, इनफैक्ट अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। Okay. तो स्काईडाइविंग का करियर फिर से शुरू हो गया। फिर फॉर्मेशन जिसमें हम बहुत सारे लोगों ने जंप किया। Okay. वो फॉर्मेशन स्काईडाइविंग के लिए मुझे यूएस में बुलाया गया था। अच्छा। तो वो भी हो गया। ऐसे एक एक करके बहुत सारे पड़ाव होते गए। Okay. 7 कॉन्टिनेंट्स प्लान किया, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गया, 7 Right. कॉन्टिनेंट्स पे जंप किया। Right. अब और 7 कॉन्टिनेंट्स पे जंप करने वाली मैं दुनिया की अकेली महिला हूँ। Oh, आई एम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड। तो really commendable. थैंक यू। तो जैसे ओलंपिक स्पोर्ट्स सबको पता है, ओलंपिक एसोसिएशन इज देयर, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। right. तो ओलंपिक स्पोर्ट्स जो होते हैं वो जमीन पे खेले जाते हैं। Right. तो उनके लिए ओलंपिक एसोसिएशन बना है। Correct. तो वैसे ही FAI है, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो Okay. हवा के खेलों के लिए बनाया हुआ है। Okay. तो ये दोनों 100 ईयर्स से हाँ, एक ही बिल्डिंग में 100 साल से चल रहा है। हमें सिर्फ इंडिया में ओलंपिक्स पता है, या ओलंपिक्स खेल खेले जाते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा, इसलिए ओलंपिक्स पता है। Right. तो एरो स्पोर्ट्स, हवाई स्पोर्ट्स जो है FAI के अंडर जो आते हैं, उसकी एक नेशनल बॉडी है एरो क्लब ऑफ इंडिया। Okay. तो 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने जब कंप्लीट करे तो उन्होंने मेरा नॉमिनेशन भेज दिया मेडल के लिए कि Okay. ये पहली दुनिया की महिला बनी है, तो हमें उसे नवाजना, मतलब yes. वी वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। Very true. तो FAI took a decision to reward me with the Sabia Goksen gold medal. Okay. And I'm first Indian woman to get recognized by FAI Oh. with some medal. And first Indian, I'm a woman, I said. First Indian man. man was J.R.D. Tata. Okay. So 1984 में J.R.D. Tata sir को for his all lifetime achievements in aero sports, aviation specifically, Okay. उनको FAI gold medals नवाजा गया था। जी, जी। और उसके बाद सेकेंड इंडियन को ही जिसको मेडल मिला है, तो दैट वाज मी इन 2018 आई गॉट द मेडल। तो मतलब एंड दैट टाइम आई वाज, आई विल से 36 37। तो Okay. उस पड़ाव में थी जिंदगी की कि हाँ पद्मश्री भी मिला है, मेडल भी मिल गया। Right. बहुत सारे लोगों को लग गया तो अभी तो रिटायर होना चाहिए। मैंने ना आई एम जस्ट 36, मेरे जो हाँ. इंस्ट्रक्टर्स है दे आर 50 60 70 ईयर्स ओल्ड। I तो know. मैं रिटायरमेंट क्यों लूँ? हाँ. एंड अभी तो मुझे कॉम्पिटिशन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। Okay. तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था घर पे मेरे पेरेंट्स के साथ। तो मैंने पापा कुछ तो नया करना पड़ेगा, अब क्या करूँ? तो मैं मदर है ना जो साड़ी की घड़ी कर रहे थे, शाम को कपड़ों की घड़ी कर रही थी। I mean everybody is paying the attention कि साड़ी वाला आइडिया कहाँ से आया? साड़ी पापा घड़ी से हो रही आया। थी। हाँ, Yes. पापा से आया। हाँ। तो ही वाज लाइक साड़ी पहन के कूद ले, वही बाकी है बस। तो मैंने साड़ी idea पहन अच्छी के है। कूद ले, बाकी है बस। तो मैंने फिर साड़ी पहनी, मैंने बोला नवारी पहननी पड़ेगी, फिर नवारी ट्राई किया, पैराशूट पहना। Okay. और मैंने बोला ये तो पॉसिबल है। हाँ. मैंने बोला चलो मैं जा रही हूँ थाईलैंड में, जाके जंप करती हूँ। देन थाईलैंड में ट्रायल्स के लिए भी गए थे, बट वहाँ पे इंस्ट्रक्टर से मना कर दिया कि साड़ी का पल्लू अटक पल्लू गया या अटक कुछ हो जाएगा, गया। क्या? तो हाँ, I know. तो मैं नहीं होगा। मैंने बोला वो उतना, मैं भी खुद इंस्ट्रक्टर हूँ। Correct. तो मैंने बोला डोंट वरी, आई विल मैनेज इट। एंड देन I did first jump and I felt so awesome कि as a Indian woman I can represent Indian woman attire sari. Yes, in Indian skydiving attire. also. और उसी टाइम पे मंदिरा बेदी did the push-ups with the sari on the stage. Okay. And somebody did the marathon with the sari. I Sari. said this is a trend This now. is the trend. The trend came up. I was like that's a great thing. Oh my God, I mean साड़ी में डाइविंग, साड़ी में आधा घंटा किचन में मैनेज करना मुश्किल होता है और साड़ी में डाइविंग, ये तो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। रियली मैम, इतना मज़ा आ रहा है साड़ी वाली स्टोरी, और ऐसे मैम की इतनी इंटरेस्टिंग पार्ट्स है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना कम है, तो हम सेशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ज़्यादा जानना है तो हम एक काम करते हैं मैम के साथ। आई मीन आर यू ऑल विथ मी? कैन वी टेक मैम इन टू दैट रैपिड फायर क्वेश्चंस एंड हियर समथिंग इंटरेस्टिंग जस्ट इन वन वर्ड फ्रॉम हर, है ना, टू नो मोर अबाउट हर। ओके, तो गाइज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, टाइटन योर सीट बेल्ट एंड लेट्स मूव। सो मैम, आई होप यू आर रेडी। या ओके, सो टी और कॉफी? Coffee. ओके, माउंटेन और ओशंस? Mountains. Okay, early morning or late night dives? Early morning. Okay, favorite color? Rainbow, all the colors actually. There's Okay, nothing okay, one- favorite food after a skydive? Anything. Anything, फिर भी? Matcha coconut tea. Okay, favorite travel destination apart from skydiving? Destination. अब मैम की लाइफ ही स्काई डाइविंग के मेरे आसपास 7 घूमती है। कॉन्टिनेंट्स हो चुके हैं। I know. बट घर ही सबसे घर। बेस्ट प्लेस है टू बी। Okay, courage or preparation, what matters more? Preparation. Okay, fear or excitement, what fuels you? Fear. Okay, sky or earth, which teaches more lessons? Sky. Okay, how do you celebrate after completing a record?
गणपति डांस करके. Oh my God. Your favorite thought when you jumped from an aircraft for the very first time? Indian woman can do anything Oh. in any field. We need one chance. That was my What scares you more, height or failure? height. Failure, to it's a part of It's a personal part success. of. Very yeah. nice. One word that describes skydiving for you? Everything. It's a hard work actually. Oh, Yeah. really nice. And that is, I think that hard work answer is much needed for Gen Z. Okay. Which continent skydive was the most thrilling? India. Okay. India ka best. Your lucky charm before a jump? Lucky charm. Charm. Before a jump, मतलब anything which you think कि okay, मुझे पापा या मम्मा या anybody, you know, before you imagine someone कि इसके बाद मुझे सब कुछ, or maybe you yourself. Myself in mirror. Oh, That's it. that's वही सबसे the real best है. motivation. Okay, so Mount Everest, North Pole, South Pole, which is your favorite jump spot out of these three? Out of these three. North Pole, South Pole, Mount Everest. So out of these three, which was your more favorite or more experiencing or more challenging? Mount Everest. Okay. बहुत ज़्यादा. So sari or jumpsuit? Sari. It's so Okay. very comfortable. Actually, I don't know why people feel sari uncomfortable. In Nawari sari सबसे comfortable है. उसमें अच्छा. horse riding भी करते हैं हम लोग. Okay. So one record you are most proud of? I have done skydiving with both the boys, kids. Oh. They were youngest Indian to do the tandem jump. तो वो best jump है. Okay. So most memorable landing ever? Mount Everest. It was very tricky. Okay. Very nice. And your role model in adventure sports? Role model in Adventure sports? Actually, Felix Baumgartner he's no more, but he's the one who did the skydiving from space. Okay. So he was my. And your message to the young audience? Whatever you want to do in your life, just first fix the goal because you will know that where you want to go and do whatever you want to do to reach there. कितने भी obstacle आए, जो भी बोले कि नहीं कर सकते या whatever, just keep focus. घोड़े के होते हैं ना वो जो like आँख पे लगा के वैसे ही चलते रहो. कुछ नहीं मतलब आप you will reach your goal. See 16 साल के बाद मैं एवरेस्ट पे जंप कर रही हूँ. So I was knowing 16 years in my heart that I want to do that. वैसे ही मैंने space का I'm talking about from 2007. I know it will take almost 20-21 years to reach there, but I know I'm gonna do that. First woman in the world to jump from space. तो I'm just saying आपके ज़िंदगी में भी ऐसे कोई गोल सेट करो कि मुझे ये करना है बस वो हो जाएगा एंड कायनात उस चीज़ को हेल्प करने के लिए आ जाती है So वापस शाहरुख खान का डायलॉग आ गया. Yes. Okay. So ma'am, last but not just the very important question from you. Describe yourself in 3 words. Always happy person Huh? and always a friend and I can take any adventure, I mean, any challenge to complete, you know. मतलब मेरी एनर्जी डाउन हो गई बट मैम की आंसर देते देते एनर्जी डाउन हुई. शीतल, यू आर एब्सोल्युटली रॉकिंग इंस्पिरेशन टू द एंटायर वर्ल्ड ग्लोब. यू आर रियली सुपर्ब एंड दीज रैपिड फायर क्वेश्चंस वर आई थिंक द चेरी ऑन द केक बिकॉज ये क्वेश्चन से जो छोटा छोटा बच गया था आई थिंक वो भी हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. सो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड द सोल फीमेल स्काई diver making waves in India. So thank you so much. So let's all appreciate the achievement of Padma Shri Sheetal Mahajan with a shout out. With the count of 3. डर के आगे जीत है. डर के आगे डर के आगे. So thank you so much Orange City Literature Festival for guys, anybody who's having Yes, we are open for question from the We are open audience. for the If you have any question, we have 2 minutes. We can take 2 questions. I think the young audience are more interested in asking questions. Yes, anybody? Anyone, from the anyone. audience? वो क्वेश्चन पूछने के लिए भी डर रहे हैं. आप कूदोगे कैसे? Ma'am, आपके achievements सुन के it takes time to process what you have done in 16 years. I think everybody is in that 22 years. 22 years. Everybody is in that trance. मतलब यहाँ से बाहर निकलने के बाद they will assemble the things. Oh my God, Yes. हम किसका session सुन के आ रहे हैं boss? It's really yes, guys. Questions, audience questions from your side. Yes. Yes. What is your health regime? Like, how to stay fit?
Actually, in skydiving, it's all more about the mental fitness. क्योंकि आपके पास सिक्स पैक एब्स है और आप एयरक्राफ्ट के दरवाजे में जाके अगर बोल दो मुझे जंप नहीं करनी या मुझे डर लग रहा है, सो दैट मैटर्स मेंटली ऑल्सो फिटनेस. So for that you really need to have a good friends who can give you good tapping कि हाँ बेटा यहाँ पे गलत जा रहे हैं, शांत हो जा. So and fitness regime में मैं कहूँ कि योगा है. Recently I have lost almost 18 kilos just to upgrade in sports में मुझे कुछ और goals है उसको achieve करना है, इसलिए तो diet है मेरा, schedule वो follow करती हूँ, and that's Because we would love to do skydiving, but every time we try, the thought scares the living lights out of me. So I want to do that because I like to see the people fly in the like a bird, but I just cannot take the last step, the first step to jump off. I just तो can't उसके do लिए it. क्या कहूँगी, टेस्ट द फियर. पहले एक बार टेस्ट तो कर लो कैसा लगता है. Actually. एंड वंस यू ओवरकम यू विल फील योरसेल्फ अनदर पर्सन. Okay. तो डर के आगे जीत है, वो भले किसी ब्रांड का टैगलाइन है, Yes. बट इट्स रियली लाइक दैट इन द लाइफ. आप किसी भी चीज़ को अचीव करते हो ना, फिर बाद में लगता है यार ये तो छोटी चीज़ थी, वी कैन डू दैट. I'll try that. Okay. Actually, What you do? Yes, definitely. We do a lot of mountain climbing and hiking and everything. You are a Vani member? No. You should We both join do it on us. our own. Okay, I've done bungee jumping, but that was the last time I did it because after that I felt that there is only one life, so save it. तो मंजी इज अ वेरी सेफेस्ट जिसमें रोप लगा होता है. स्काई डाइविंग इज अ मोर, एक्चुअली आई विल से स्काई डाइविंग इज मोर सेफेस्ट बिकॉज आपके पास 2 पैराशूट्स होते हैं. And he's done And- rock jumping also. Pardon? He's done base jumping and rock Okay. jumping. He's done that. But Okay, I think sky is kind of high for us. So quick, मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें कि आपने टोटल कितने जंप्स किए हैं. Yes, I have done 821 jumps. I have 20 and from 9 different aircrafts and helicopters, and I have 26 national records today, 4 Asia and 8 world records. और एक क्वेश्चन का जवाब आप देना चाहिए कि आपका स्काई से जंप करना में आपको समय मिलता है पैराशूट खोलने का. आपका सबसे छोटा जंप कितने हाइट का था वो भी बताइए. Recently in 2025, I represented India in Malaysia for base jumping, and in which I jumped from 300 feet building and that is more mountain के scary. cliff से भी किया था. So, That is more scary. so lowest jump is from Yes. 300 feet and highest I have done from 30,500 30,000. feet. Correct, correct. So I know that everybody wants you to speak on, but we really have, ma'am, constraint of time. So I am so sorry, guys. बहुत दिल अच्छा, पे. एक question. अच्छा, Just one standing. question. Start. Yes, quickly, please. So, ma'am, I have one question. I'm into endurance sports like bicycling, swimming, and running. So, I want to understand how to make living out of it, because obviously, if you have started like in very starting, आप earn नहीं कर रहे होगे इस चीज़ से. It was just your passion. Then you started earning. So, I want to understand that journey, because I want to go into sports, but I'm also fearful कि मैं उससे living बना पाऊंगा या नहीं. fearful रहोगे तो कभी progress नहीं करोगे. Please face your fears, because इसका एक ही है, आपको नहीं पता आपको आगे जाके उसमें से यू विल बी हैविंग अ सर्वाइवल फ्रॉम दैट, बट वो हो जाएगा. बिकॉज इवन आई वॉज नॉट हैविंग एनी क्लू कि मैं नॉर्थ पोल करके करूँगी क्या, फिर साउथ पोल करके करूँगी क्या. देन आई गॉट द रोड मैप की अरे इसमें तो मैं इंस्ट्रक्टर भी बन सकती हूँ. आई वर्क एज अ इंस्ट्रक्टर इन US. आई वर्क US मिलिट्री विद द US मिलिट्री विद द गोल्डन नाइट्स. दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. आई वॉज नॉट नोइंग वॉट विल हैपन इन अहेड. एंड आई विल से अगर आप ट्रैथलिट हो Yes. तो गो फॉर आयरन मैन का एक बार प्रिपरेशन आप करके एक बार आयरन मैन बन जाते हो ना, देर आर मेनी डोर्स ओपन्स फॉर यू एज अ कोच. सो यू कैन टीच youngsters who wants to do the Ironman, because my kids are doing for preparation for Ironman in a May. So I will say be dedicated with your what knowledge you are getting for those sports.
जैसे आपको टाइमलाइन होती है कि सर्टन टाइम में ही आपको आयरन मैन कंप्लीट करना होता है, उसमें मतलब वाटर स्विमिंग के लिए पर्टिकुलर टाइम है, बाइकिंग के लिए पर्टिकुलर टाइम है, या रनिंग के लिए पर्टिकुलर टाइमिंग है, उसका आप प्रॉपर होमवर्क करो. जैसे मेरे स्पोर्ट्स में इफ़ यू आस्क एनीथिंग अबाउट हाउ आई कैन जंप, एंड देर आर स्काई डाइविंग में देर आर डिफरेंट 14 डिसिप्लिन्स. स्काई डाइविंग में बता रही हूँ, विंग सूट फ्लाइंग है या एक्यूरेसी फ्लाइंग है. आई एम इंटरनेशनल जज फॉर दैट. तो मैंने पूरी पढ़ाई करी है. सो आई हैव राइट नाउ चांसेस टू गो अब्रॉड एंड आई कैन वर्क एनी कॉन्टिनेंट एनीवेयर. बट मुझे इंडिया में स्टार्ट करना है, इसलिए मैं इंडिया में हूँ राइट नाउ. बट अगर आपके स्पोर्ट्स में वो बैरियर नहीं है, इंडिया में देर आर मेनी पीपल हु वांट्स टू डू बिकम अ ट्रायथलीट. तो आपका होमवर्क वो प्रॉपर करके रखो, पीपल विल कम टू यू. देन यू डोंट नीड टू फाइंड अ जॉब, you can create your own business out of it. Okay. Yeah. I hope that answers your question in a very well mannered. She has answered it. Okay, thank you, thank you. So I'm so sorry I have to stop you over there, but we have the next session over here. So thank you Sheetal Mahajan ma'am and Ruchi Chaudhary ma'am for taking us beyond this. एक चीज जो मुझे आज समझ में आई, that fear is your teacher. Sky, she has made the sky her canvas and courage her language. So guys, this is Padam Shri awardee Sheetal Mahajan for you. Yes, please give her a big hand. And I would like to present this moments from the session for you, ma'am. Yes, and this is for you.